Hello, welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Pat Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Microwave Engineering. Dear students, in the last video lecture, we have discussed about concept of impedance matching in transmission line. So, whenever we are using transmission line for transmission of energy from source to load, then impedance of the source, impedance of the line and impedance of the load must be matched. If it is not so, then it results in the power loss on the transmission line. तो अगर ट्रांसमिशन लाइन पे इम्पीडेंस मैचिंग नहीं है तो इट रिजल्ट्स इन द पावर लॉस. वेरी सिंपल. नाउ if it is not so, if there is a no impedance matching, then there are several ways to achieve the impedance matching on transmission line. And one of the method for achieving impedance matching that we discussed in the last class. So what was that method? If you recall, the name of that method is quarter wave transmission line. So using quarter wave transmission line, we can able to achieve impedance matching on the transmission line. Now in today's class, we will continue with the concept of impedance matching on transmission line, and today we will going to discuss second method for achieving the impedance matching, that is impedance matching using single stub. Impedance matching using single stub. तो ये बच्चों सेकंड मेथड है इम्पीडेंस मैचिंग अचीव करने की. तो ये सिंगल स्टब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस सिंगल स्टब. सो बच्चों, सिंगल स्टब इज नथिंग बट इट इज अ शॉर्ट सर्किटेड, इट इज अ पीस ऑफ शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन. इट इज अ पीस ऑफ short circuited transmission line, short circuited transmission line, okay, which is connected in parallel with the main transmission line. So single stub क्या है? It is a piece of short circuited transmission line. तो as you can see in the figure, ये जो ब्लू कलर का जो मतलब ये पोर्शन है, ये सेक्शन है, that is your stub. You can see it is a short circuited transmission line which is connected in parallel with the main transmission line. ये जो पिंक कलर की जो लाइन है, that is your main transmission line. उसके साथ आपने ये स्टब को पैरेलल में कनेक्ट किया है in order to achieve impedance matching. Now very important, in order to achieve the impedance matching on the transmission line, the stub should be connected at appropriate distance from the load. है ना, मतलब ये स्टब को कहीं पे भी हम कनेक्ट नहीं कर सकते. The distance at which we are connecting the stub, it should be appropriate, okay, that we have to calculate, and the length of this stub should also be important in this case. तो बच्चों, जब भी हम स्टब कनेक्ट करते हैं for achieving the impedance matching, the location of the stub as well as the length of this stub will play very important role. It means we have to select the location of the stub and length of this stub appropriately so that we can achieve the impedance matching. So as shown in figure, we have connected a piece of stub in shunt with the line or in parallel with the line, and the length of this stub is L dash and its location from the load is L. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमने स्टब कनेक्ट किया है उसका लोड से लोकेशन L से मैंने डिनोट किया है, और उसकी जो लेंथ है, स्टब की लेंथ है, वो है L dash. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस इक्वेशन और वी हैव टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ दिस डिस्टेंस ऑफ द स्टब फ्रॉम द लोड as well as the length of the stub in order to achieve impedance matching. Okay, so in order to achieve impedance matching on the transmission line, what should be the distance or what should be the location of the stub from the load, and what should be the length of the stub that we have to find out.
तो हम क्या करेंगे कि हम ये दोनों के फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे. वी विल डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द डिस्टेंस और पोजीशन ऑफ द स्टब एंड वी विल ऑल्सो डिराइव द फॉर्मूला और इक्वेशन फॉर द लेंथ ऑफ द स्टब इन ऑर्डर टू अचीव प्रॉपर इंपीडेंस मैचिंग. तो बच्चों यहाँ पे हम पहले इनपुट इंपीडेंस का इक्वेशन यहाँ पे हम लिखते हैं. तो इनपुट इंपीडेंस using impedance transformation relation is given as Zin is equal to Z0 inside the bracket Z0 plus ZL 10 hyperbolic gamma L divided by ZL plus Z0 10 hyperbolic gamma L. तो ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर दिया है. ओके, सो दिस इज द impedance transformation relation that we know. And this formula is Zin is equal to Z0 inside the bracket Z0 plus ZL 10H gamma L divided by ZL plus Z0 10H gamma L. So this is the formula for the input impedance, that is Zin. And this relates the input impedance, characteristic impedance of the line, that is Z0, and load impedance, that is ZL. Okay, ये तीनों का ये relation establish करता है. Now from impedance we can also write down the formula for the admittance. Now what is admittance? Admittance, that is denoted by Y, which is nothing but reciprocal of the impedance, that is 1 over Z. So Y is equal to 1 over Z. Admittance is equal to reciprocal of impedance. तो हम इसका reciprocal लिखे, then it would be admittance, that is Y in is equal to Z0, that is replaced by Y0, ZL, that is replaced by YL. So this would be Y in is equal to Y0 inside the bracket YL plus Y0 10 hyperbolic gamma L divided by Y0 plus YL 10 hyperbolic gamma L. So this is nothing but reciprocal of this Z in admittance. Now this is a normal admittance. If you would like to compute the normalized admittance, then we have to divide this admittance by its कैरेक्टरिस्टिक एडमिटेंस. दैट इज अगर मैं ये मेरा जो y in है उसको y0 से मैं डिवाइड करूं तो उसकी वो नॉर्मलाइज बन जाएगा. क्या बन जाएगा? नॉर्मलाइज एडमिटेंस. तो हम क्या करेंगे, ये एडमिटेंस को y0 से डिवाइड करेंगे, दैट इट वुड बी नॉर्मलाइज एडमिटेंस. तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मलाइज एडमिटेंस. सो व्हाट इज नॉर्मलाइज एडमिटेंस? सिमिलर टू नॉर्मलाइज इंपीडेंस, इफ यू डिवाइड दिस एडमिटेंस बाय characteristic admittance, that is y0, then it will be converted into normalized impedance, sorry admittance. तो इसको मैं डिवाइड कर दूं तो y डिवाइड बाई 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? YL डिवाइडेड बाई y0 प्लस 10 हाइपरबोलिक गामा L डिवाइडेड बाय 1 प्लस YL डिवाइडेड बाई 0 10 हाइपरबोलिक गामा L. करेक्ट. एंड ये जो नॉर्मलाइज एडमिटेंस है उसको मैं स्मॉल y इन से डिनोट करता हूँ. तो स्मॉल y in denote the normalized admittance, which is nothing but capital Y in divided by capital Y0, and small yl, that is the normalized load admittance, is equal to capital YL divided by Y0. तो इसको मैं कैपिटल Y in divided by Y0 को स्मॉल y in से रिप्लेस करता हूँ, एंड ये कैपिटल YL डिवाइडेड बाय Y0 को मैं स्मॉल YL से रिप्लेस करता हूँ. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों हमारा? स्मॉल y in, that is a normalized admittance, input admittance, is equal to normalized load admittance plus 10 hyperbolic gamma L divided by 1 plus YL 10 hyperbolic gamma L. Now here this gamma is nothing but propagation constant. gamma क्या है बच्चों? propagation constant है. ओके, एंड propagation constant का फॉर्मूला क्या है? gamma is equal to alpha plus j beta. If you remember, this is nothing but alpha plus j beta. Correct. And if we consider this line to be lossless, ये लाइन को अगर मैं lossless consider करूँ for simplicity, if you consider the line to be lossless, then for lossless line what is the condition? Alpha is equal to 0, मतलब attenuation constant that is equal to 0 for lossless transmission line. तो अगर मैं यहाँ पे lossless transmission line consider करूँ तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? जे बीटा. तो यहाँ पे गामा को हम जे बीटा से रिप्लेस करेंगे. ओके, तो y in is equal to YL plus j 10 हाइपरबोलिक बीटा L डिवाइडेड बाय 1 प्लस j YL 10 हाइपरबोलिक बीटा L. अब मुझे ये जो मुझे एक्सप्रेशन मिला उसको मुझे सॉल्व करना है. तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है
तो हमें इसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर जो है उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। तो नीचे डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी वो कौन सी है, 1 प्लस जे वाई एल टेन हाइपरबोलिक बीटा एल, उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 माइनस जे वाई एल टेन हाइपरबोलिक बीटा एल, उससे मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड करो। ओके, तो मैं इसको ये पूरे जो मेरा एक्सप्रेशन है उसको मैं ये डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूँ एंड डिवाइड करता हूँ, दैट इज 1 माइनस जे वाई एल टेन एच बीटा एल। अब इसको सॉल्व करते हैं तो मैं ये नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस जे स्क्वायर वाई एल स्क्वायर टेन एच स्क्वायर बीटा एल, बट जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई एल स्क्वायर टेन एच स्क्वायर बीटा एल, एंड ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करो। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें जो रियल टर्म्स एंड इमेजनरी टर्म्स है उसको सेपरेट आउट करते हैं। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन एंड सेपरेटिंग द रियल एंड इमेजनरी पार्ट व्हाट वी विल गेट, YL plus YL 10 square H beta L, this is the real part, plus J 10 H beta L minus YL square 10 H beta L, this is the imaginary part। तो मैंने ये दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट को सेपरेट आउट किया। ओके, तो ये मुझे हमारे नॉर्मलाइज्ड एडमिटेंस का फॉर्मूला मिल गया। अब बच्चों इंपीडेंस मैचिंग अगर मुझे अचीव करना है तो ये जो नॉर्मलाइज एडमिटेंस है उसका रियल पार्ट 1 होना चाहिए, कंडीशन है। सो फॉर मैचिंग, फॉर इंपीडेंस मैचिंग द नॉर्मलाइज एडमिटेंस उसका रियल पार्ट जो है ये वाला, उसका जो रियल पार्ट है दैट शुड बी यूनिटी, वो 1 होना चाहिए। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है उसका जो रियल पार्ट है दैट शुड बी 1 फॉर इंपीडेंस मैचिंग ऑन द लाइन। तो उसका रियल पार्ट कौन सा है, दैट इज वाई एल प्लस वाई एल टेन स्क्वायर एच बीटा एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई एल स्क्वायर टेन स्क्वायर एच बीटा एल इज इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन है फॉर इंपीडेंस मैचिंग। फॉर इंपीडेंस मैचिंग द नॉर्मलाइज एडमिटेंस, द रियल पार्ट ऑफ द नॉर्मलाइज एडमिटेंस मस्ट बी यूनिटी। ओके, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज को मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा वाई एल प्लस वाई एल टेन स्क्वायर एच बीटा एल इज इक्वल टू 1 प्लस वाई एल स्क्वायर टेन स्क्वायर एच बीटा एल। अब इसको मैं इस साइड ले लेता हूँ, मतलब ये टर्म को इस साइड ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा दैट इज वाई एल स्क्वायर टेन स्क्वायर एच बीटा एल माइनस वाई एल टेन स्क्वायर एच बीटा एल इज इक्वल टू वाई एल माइनस 1। और उसमें से मैं टेन स्क्वायर एच बीटा एल को कॉमन ले लेता हूँ, तो इफ वी सिंप्लीफाइड देन आई विल गेट दिस एक्सप्रेशन दैट इज वाई एल स्क्वायर माइनस वाई एल टेन स्क्वायर एच बीटा एल इज इक्वल टू वाई एल माइनस 1। अभी इसमें से हम वाई एल को कॉमन ले सकते हैं, तो वाई एल को कॉमन ले लो इसमें से, ये दोनों में से। तो वाई एल कॉमन लिया तो क्या बचेगा वाई एल माइनस 1 टेन स्क्वायर एच बीटा एल इज इक्वल वाई एल माइनस 1। ये वाई एल माइनस 1 वाई एल माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या वाई एल टेन स्क्वायर एच बीटा एल इज इक्वल टू 1, और वाई एल को मैं इस साइड ले लूँ तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एच बीटा एल इज इक्वल टू 1 ओवर वाई एल। और इसमें से मैं टेन एच बीटा एल लिखूँ तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो टेन एच बीटा एल इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 ओवर वाई एल। ओके, अब ये नॉर्मलाइज लोड एडमिटेंस है, उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं। सो नॉर्मलाइज लोड एडमिटेंस इज रिटन एज कैपिटल वाई एल लोड एडमिटेंस डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक एडमिटेंस दैट इज वाई जीरो। तो इसको हम रिप्लेस करते हैं, दैट इज वाई जीरो डिवाइडेड बाय वाई एल। और ये इसको मैं इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस लिखूँ तो हमें पता है कि z इज इक्वल टू 1 ओवर वाई। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों y0 डिवाइडेड बाय वाई एल, इसकी जगह पे zl डिवाइडेड बाय z0 हो जाएगा। सो इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस 10 हाइपरबोलिक बीटा एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ zl डिवाइडेड बाय z0। अब बीटा एल को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बीटा एल इज इक्वल टू 10 इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ zl डिवाइडेड बाय z0, एंड l इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा 10 इनवर्स zl स्क्वायर रूट ऑफ zl डिवाइडेड बाय z0। तो l क्या है बच्चों, लोकेशन ऑफ द स्टब फ्रॉम द लोड। What is L? Location of the stub from the load, that is L। तो हमने L का फॉर्मूला डिराइव किया, we have derived the position of the stub from the load। okay, तो L is equal to 1 over beta 10 inverse square root of ZL divided by Z0। and what is beta? Phase constant, which is nothing but 2 pi by lambda, 2 pi divided by lambda।
तो यहाँ पे जो बीटा है उसको रिप्लेस करो 2 पाई डिवाइड बाई लेमडा से, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L इज इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ ZL डिवाइड बाई Z0 एंड दिस फॉर्मूला इज द पोजीशन ऑफ द स्टब फ्रॉम द लोड एंड। जो हमने सिंगल स्टब को कहाँ पे कनेक्ट करना है उसका पोजीशन हमें ये फॉर्मूला से मिल जाएगी इन ऑर्डर टू अचीव प्रॉपर इंपीडेंस मैचिंग। करेक्ट। तो हमने एक चीज फाइंड कर दी स्टब मैचिंग के लिए, हमने पोजीशन ऑफ द स्टब फाइंड कर दी फ्रॉम द लोड। अब क्या करना है बच्चों, मुझे लेंथ ऑफ द स्टब फाइंड करना है इन ऑर्डर टू अचीव द इंपीडेंस मैचिंग। अब लेंथ फाइंड करते हैं, स्टब की लेंथ। तो स्टब की लेंथ फाइंड करने के लिए कंडीशन क्या है, सो लेट्स फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टब। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नॉर्मलाइज्ड एडमिटेंस इज कंसिडर टू बी बी। मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट जो है नॉर्मलाइज्ड एडमिटेंस का, ओके, उसको मैंने, ये इमेजिनरी पार्ट है उसको मैंने बी कंसीडर किया, स्मॉल बी कंसीडर किया इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्टब। सो स्मॉल बी इज इक्वल टू 10 हाइपरबोलिक बीटा एल इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस वाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई एल स्क्वायर 10 एस स्क्वायर बीटा एल। नाउ हमें पता है बच्चों कि 10 हाइपरबोलिक बीटा एल इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वाई एल। यहाँ पे हमें मिला है, ये देखो 10 हाइपरबोलिक बीटा एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर वाई एल। तो 10 एच बीटा एल को 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर वाई एल से रिप्लेस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 10 एच बीटा एल की जगह पे 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वाई एल इंटू 1 माइनस वाई एल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वाई एल स्क्वायर इंटू 1 ओवर वाई एल। 10 एच स्क्वायर बीटा एल दैट इज 1 ओवर वाई एल। ये वाई एल कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वाई एल 1 माइनस वाई एल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वाई एल। और व्हाट इज दिस, दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस वाई एल into 1 minus YL, okay, square minus b square according to formula square minus b square। तो 1 plus YL कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 over square root of YL, ये कैंसिल हो जाएगा सॉरी तो 1 minus YL डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ YL। करेक्ट। एंड ये जो चीज है वो नॉर्मलाइज एडमिटेंस है, नॉर्मलाइज लोड एडमिटेंस है, उसको मैं YL कैपिटल YL डिवाइडेड बाय Y0 से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा और सिंप्लीफाई करूंगा, तो मुझे ये फॉर्मूला मिलेगा Y0 कैपिटल Y0 माइनस YL डिवाइड बाय Y0 इंटू YL। उसको इन टर्म्स, ओके, तो ये मिल गया, वो किसका फॉर्मूला मिला मुझे, B का मिला, B। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट से तय हुआ है कि ये B की वैल्यू होती है वो कॉट बीटा एल डैश है। सो B इज नथिंग बट कॉट बीटा एल डैश फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। तो B की जगह पे मैं कॉट बीटा एल डैश लिख दूं, तो कॉट बीटा एल डैश इज इक्वल टू Y0 माइनस YL डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ Y0 इंटू YL। ओके, तो कॉट बीटा एल को 10 बीटा एल में कन्वर्ट करो, तो उसका क्या लेना पड़ेगा, व्हाट इज कॉट बीटा एल, कॉट बीटा एल डैश सॉरी एल डैश इज इक्वल टू 1 ओवर 10 बीटा एल डैश। करेक्ट, 10 बीटा एल डैश, बिकॉज हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा। तो इसके हिसाब से 10 बीटा एल डैश क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ Y0 इंटू YL डिवाइड बाय Y0 माइनस YL। सो बीटा एल डैश इज इक्वल टू 10 इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ Y0 डिवाइड बाय YL डिवाइड बाय Y0 माइनस YL एंड एल डैश इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा 10 इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ Y0 इंटू YL डिवाइडेड बाय Y0 माइनस YL। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा इज नथिंग बट 2 पाई बाय लैम्डा। तो इससे रिप्लेस करो बीटा को, 2 पाई बाय लैम्डा से रिप्लेस करो, तो क्या मिलेगा बच्चों में, एल डैश इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई 10 इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ Y0 इंटू YL डिवाइडेड बाय Y0 माइनस YL। एंड इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस में लिखूं तो Y0 इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस में लिखूं तो Z0 इज इक्वल टू 1 ओवर Y0, करेक्ट, एंड ZL इज इक्वल टू 1 ओवर YL। तो Y0 एंड YL को इससे रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, लैम्बडा ओवर 2 पाई 10 इनवर्स Z0 इंटू ZL डिवाइडेड बाय ZL माइनस Z0। तो ये जो फॉर्मूला आपको मिला, एल डैश इज इक्वल टू लैम्बडा ओवर 2 पाई 10 इनवर्स inside the bracket square root of Z0 into ZL divided by ZL minus Z0. This represents the length of the stub required for matching. ओके, तो हमने क्या क्या फाइंड किया बच्चों, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिराइव किए। वन इज दी
L का formula, what is L? Position of the stub from the load, and we have also derived the length of the stub required in order to achieve impedance matching. ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये लेंथ का फॉर्मूला, सॉरी पोजीशन का फॉर्मूला, दैट इज लैम्डा ओवर 2 पाई tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ ZL डिवाइडेड बाय Z0, एंड ये जो लेंथ ऑफ द स्टब का फॉर्मूला, ये दोनों आपको याद रखने हैं. ये दोनों से डायरेक्टली एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. करेक्ट. तो एक न्यूमेरिकल भी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ पे देखो एक न्यूमेरिकल्स है बेस्ड ऑन दी impedance matching using single stub. So let me read the question. 100 ohm line with air as a dielectric is terminated by load impedance 600 ohm and is excited by 1 gigahertz, okay, frequency. Then we have to find the position and length of the single stub of 100 ohm impedance. okay, तो मुझे इस केस में मेरे पास ये लाइन जो है 100 ओम की लाइन है, मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस दैट इज Z0 इज इक्वल टू 100 है. करेक्ट. और जो लोड इंपीडेंस यहां पे दिया गया दैट इज ZL इज इक्वल टू 600 है, 600 ओम. एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन दैट इज F इज इक्वल टू 1 गीगाहर्ट्ज है. और ये लोड एंड ट्रांसमिशन लाइन जो इंपीडेंस मिसमैचिंग आपको दिख रहा है, अभी देख सकते हो आप कि ये दोनों के इंपीडेंस अलग अलग है. ओके, ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस है 100 ओम एंड लोड का इंपीडेंस है 600 ओम. सो इंपीडेंस मिसमैचिंग है एंड वी हैव टू अचीव द इंपीडेंस मैचिंग. सो फॉर अचीविंग इंपीडेंस मैचिंग व्हाट वी विल डू, वी विल कनेक्ट द स्टब of appropriate length at the appropriate position from the load. Okay, so we have to connect this stub in shunt with the main transmission line at appropriate position from the load, and the length of the stub should also be appropriate. तो कैसे फाइंड करना है, तो दोनों के फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है. तो L का फॉर्मूला क्या है बच्चों, द पोजिशन ऑफ द स्टब फ्रॉम द लोड, L इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ ZL डिवाइडेड बाई Z0. ZL की वैल्यू मेरे पास है, Z0 की वैल्यू मेरे पास है. Z0 की वैल्यू कितनी है 100, ZL की वैल्यू कितनी है बच्चों 600. लैम्डा मुझे फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेरे पास है तो फ्रीक्वेंसी से लैम्डा इजीली फाइंड कर सकते हैं. सो व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू C बाय F, बिकॉज C इज इक्वल टू लैम्डा. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें पता है. करेक्ट. तो इससे लैम्डा इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय F हो जाएगा. व्हाट इज C, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, that is 3 multiplied by 10⁸ मीटर पर सेकंड. F is the frequency 1 गीगाहर्ट्ज है तो ये हो जाएगा 10⁹ हर्ट्ज. करेक्ट. 1 गीगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 10⁹ हर्ट्ज. करेक्ट. तो ये 10⁹ हो गया और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू 0.3 मीटर. ओके, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 0.3 मीटर. तो लैम्डा मेरे पास है, सब वैल्यू अननोन मेरे पास है, तो ये 0.3 लैम्डा की जगह 0.3 लिख दो. 0.3 डिवाइड बाई 2 बाई tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 600 डिवाइड बाई 100. और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पोजीशन ऑफ सिंगल स्टब मिलेगा L इज इक्वल टू 0.056 मीटर, 0.056 मीटर. तो ये पोजीशन तो मिल गया है, L हमें मिल गया है, दैट इज दी 0.056 मीटर. Correct. It means that I have to connect this stub at the location that is 0.056 meter from the load. मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 0.056 मीटर लोड से होना चाहिए in order to achieve impedance matching. अब L' मुझे फाइंड करना है, that is the length of the stub. करेक्ट. तो L' का फॉर्मूला याद करो बच्चों, L' इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई tan इनवर्स इनसाइड द ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ ZL इंटू Z0 डिवाइड बाय ZL माइनस Z0. ये सब वैल्यू मेरे पास जितने भी अननोन यहाँ पे इक्वेशन में आपको दिख रहे हैं, सब की वैल्यू हमें पता है. Z0 दैट इज द 100 ओम, ZL दैट इज द 600 ओम, लैम्डा दैट इज 0.3 मीटर. सब वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, सबकी वैल्यू यहाँ पे रख दो. तो रखने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो
हमें एल डैश की वैल्यू मिलेगी, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्टब इज इक्वल टू 0.0217 मीटर। सो एल डैश इज इक्वल टू 0.0217 मीटर, मतलब ये जो लेंथ है दैट इज द 0.0217 meter. So we have derived or we have calculated the position of the stub from the load as well as length of the stub required in order to achieve impedance matching between 100 ohm impedance to 600 ohm impedance. Correct? Okay. So बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? We have discussed the impedance matching using single stub. So what is single stub? Single stub is nothing but it is a piece of short circuited transmission line which is connected in parallel with the main transmission line at appropriate location from the load, and the length of the stub should also be appropriate in order to achieve impedance matching. Okay, और इसका जो appropriate location मतलब distance of the position of the stub from the load as well as the length का फॉर्मूला हमने डिराइव किया. Okay, in terms of wavelength Z0 and ZL, and we have also calculated one numerical on the impedance matching using single stub. Okay, so I hope कि आज हमने जो डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा. Let's stop here. We'll discuss other aspect of this impedance matching in our next video lecture. Thank you very much.